اعلان جنگ بندی کے بعد صہیونی فوج کے غزہ پر شدید حملے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ شیخ رضوان البریج کیمپ، شاطی کیمپ اور نصیرات میں خون کی ہولی۔ 20 بچوں اور 25 خواتین سمیت 76 فلسطینی شہید، 230 زخمی۔ 15 ماہ سے جاری اسرائیل کی نسل کشی مہم میں 47,000 کے قریب فلسطینی شہید، 1,10,000 سے زائد زخمی۔ ہزاروں متاثرین ملبے تلے دب گئے، شہداء کی تعداد کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ، صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ شدت پسند اتحادی جماعتوں کے معاہدے کی مخالفت کے باعث حکومت گرنے کا خطرہ۔ نیتن یاہو نے کابینہ سے معاہدے کی منظوری پر ووٹنگ رکوا دی۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کیا ہے کہ حماس آخری وقت میں معاہدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ حماس نے الزام مسترد کر دیا۔ سمیع زہری نے کہا کہ حماس جنگ بندی سے متعلق اپنی باتوں پر قائم ہے۔ امریکہ جنگ بندی معاہدہ برقرار رہنے پر اعتماد۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جنگ بندی اتوار سے شروع ہو سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے صبر اور مزاحمتی قوتوں نے صہیونی حکومت کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ حماس اسرائیل معاہدے پر رد عمل میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ایک دن مورخین اپنی کتابوں میں لکھیں گے کہ ایک صہیونی گروہ نے ہزاروں خواتین اور بچوں کا انتہائی ہولناک طریقے سے قتل عام کیا اور آخر کار انہیں شکست ہوئی۔ مراکش کے قریب غیر ملکی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ کشتی ماریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی۔ مراکشی حکام نے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں سوار 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ کشتی پر 66 پاکستانیوں سمیت 86 غیر ملکی تارکین وطن سوار تھے۔ 50 افراد کی حالت کی تصدیق، 44 پاکستانی بھی شامل۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے ہے۔ 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔ تارکین وطن کو مراکو کی سمندری حدود میں مبینہ طور پر قتل کیا گیا۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والے نوجوانوں نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کشتی حادثے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق کشتی پر پاکستانیوں سمیت 80 افراد سوار تھے۔ کشتی مراکش کی بندرگاہ دخلہ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ رباط میں سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستانیوں کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے سفارت خانے کی ٹیم دخلہ روانہ۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا۔ آرچناٹ جانے والے اشیاء خوردونوش کے قافلے کو سخت سیکیورٹی کے باوجود لوٹ لیا گیا۔ بغن کے مقام پر مسلح افراد نے ناکہ لگا کر ٹرک روکے اور ٹرک میں لوٹ مار کے بعد انہیں آگ لگا دی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق قافلے میں شامل کئی ٹرکوں کو نقصان پہنچا۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈرائیور اور سیکیورٹی اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بروقت کارروائی، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے وادی تیرہ میں آپریشن، کامیاب کارروائی میں 22 خوارج ہلاک، 18 زخمی۔ ISPR کے مطابق آپریشنز قیام امن تک جاری رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ملک سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اعلان جنگ بندی کے بعد صہیونی فوج کے غزہ پر شدید حملے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ شیخ رضوان البریج کیمپ، شاطی کیمپ اور نصیرات میں خون کی ہولی۔ 20 بچوں اور 25 خواتین سمیت 76 فلسطینی شہید، 230 زخمی۔ 15 ماہ سے جاری اسرائیل کی نسل کشی مہم میں 47,000 کے قریب فلسطینی شہید، 1,10,000 سے زائد زخمی۔ ہزاروں متاثرین ملبے تلے دب گئے، شہداء کی تعداد کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ، صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ شدت پسند اتحادی جماعتوں کے معاہدے کی مخالفت کے باعث حکومت گرنے کا خطرہ۔ نیتن یاہو نے کابینہ سے معاہدے کی منظوری پر ووٹنگ رکوا دی۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کیا ہے کہ حماس آخری وقت میں معاہدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ حماس نے الزام مسترد کر دیا۔ سمیع زہری نے کہا کہ حماس جنگ بندی سے متعلق اپنی باتوں پر قائم ہے۔ امریکہ جنگ بندی معاہدہ برقرار رہنے پر اعتماد۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
जंग बंदी इतवार से शुरू हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के सब्र और मज़ाहमती क़ुव्वतों ने सेहूनी हुकूमत को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। हमास इसराइल मुआहदे पर रद्द अमल में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि एक दिन मोरखीन अपनी किताबों में लिखेंगे कि एक सेहूनी गिरोह ने हज़ारों ख़वातीन और बच्चों का इंतहाई हौलनाक तरीके से कत्लेआम किया और आखिरकार उन्हें शिकस्त हुई। बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 16 साला शराकत दारी का तारीखी मुआहदा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात में मुआहदे पर दस्तखत किए और मरासले में कहा कि बरतानवी यूक्रेन की हिमायत कभी तर्क नहीं करेगा। यूक्रेन को नया मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने का भी वादा। सुपर पावर की तमाम मशीनरी नाकाम। कैलिफोर्निया में लगी आग हर शहर को मिटाने लगी। तमाम जतन के बावजूद आग पर 50% भी काबू ना पाया जा सका। खौफनाक आग से 40,000 एकड़ रकबा जलकर राख। 25 अफराद हलाक, 16 लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू टीमों को तेज हवाओं के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात। भारतीय अदाकार सैफ अली खान डकैती मज़ाहमत पर शदीद जख्मी। डाकू रात गए मुंबई के इलाके बांद्रा में अदाकार के घर में घुसा, मज़ाहमत पर खंजर के वार किए। अदाकार की रीढ़ की हड्डी समेत जिस्म पर 6 जख्म आए। अस्पताल में सर्जरी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने डाकू की तस्वीर जारी कर दी। आपकी और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी। चेयरमैन बैरिस्टर साहब पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात। पेशावर में आर्मी चीफ से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। हमने अपने तमाम मसाइल और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रखे। उम्मीद है सूरत हाल अब मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा जब बैठते हैं तो कुछ सोच कर ही बैठते हैं। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाज़ुर में हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी में पेश। 9 मई समेत दीगर वाक़यात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मावनत भी मांग ली। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का बानी से एक और मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, कोशिश है बेहतर रास्ता निकाला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा तय पाया कि 7 दिन में हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर जवाब दिया जाएगा। आइंदा कमेटी इजलास का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज़ के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत ने 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब देना है और हुकूमत ने इस चीज को माना है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टियों के हम इन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग वजीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बगैर किसी कटकन के अनमॉनिटर्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई नजर नहीं होगी, कोई आलात फिट नहीं होंगे, उस माहौल में होनी चाहिए।
हुकूमत को अब 7 रोज में मुज़ाकरात का तहरीरी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाएगी, इसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले, उस वक्त हमारी इस बात की है कि होश के नाखून लिए जाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात आगे बढ़ाएं। महमूद अचकज़ई ने कहा, जो आइन के खिलाफ हैं हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। जरूरत इस बात की है कि होश के नाखून ली जाए। जो इस वक्त अफगानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत खतरनाक है और इसके लिए बहुत संजीदगी की जरूरत है, बहुत जिम्मेदारी की जरूरत है और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तमाम मामलात वो टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसको इस्तेमाल करके उनके साथ मामलात आगे बढ़ाए जाए। बाकी इसका जो जवाब है उसके मुतल्लिक एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम अलाई पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है और PMLN की नुमाइंदगी भी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। वो जो जवाब हम पेश करेंगे वो हतमी जवाब हो। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने की कमेटी की तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी PP भी शामिल। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा और कुछ नहीं। इन मुतालबात का तो कोई जवाब नहीं बनता। PTI ने मुतालबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डेटा फराहम नहीं किया। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। ठट्टा में पोलियो का केस सामने आया। केसेस की मजमूई तादाद 73 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में पोलियो केस रिपोर्ट हुआ था। मुल्क भर में नए साल की पहली पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम 3 से 9 फरवरी तक चलाई जाएगी। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। बालाई और पहाड़ी इलाकों में हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। लेह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गोपस में -9 और अस्तोर में 7। बाबूसर टॉप हुंजा में बर्फबारी। सवात के इलाके मैंगोरा और गिरदो नवाह में बारिश और बर्फबारी। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। ठंडी हवाओं का राज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। मुसाफिरों को मुश्किलात। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान में क्रिकेट मेला सजने को तैयार। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आज से आगाज। कप्तान शान मसूद कहते हैं, वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज बहुत अहम है। होम कंडीशंस में टेस्ट सीरीज की बहुत अहमियत होती है। हर किसी की कोशिश होती है कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। एक साल में कई बार हम जीतने की पोजीशन में आकर मैच हारे। और मारूफ नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने जिंदगी की 79 बहारें देख ली। जावेद अख्तर ने फिल्मी दुनिया को शोले, दीवार और डॉन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। नगमा निगारी शुरू की तो उनके नगमे खूबसूरत शायरी और रिदम के बायस ज़बान ज़द-ए-आम हो गए।